Hello everyone. Today I'll take on the topic of differentiation. What I have observed is like जब बच्चे differentiation करते हैं तो it's not a regular process, like हर रोज नहीं आता उसका question, so they tend to forget about it. So I'll try to put certain formulas, certain techniques जो कि 11th 12th CBSE, NEET और JEE Mains के लिए important है, right? So in this particular section I'm going to take on simple differentiation so that every student is able to understand why we use differentiation, like how do we differentiate things and what does it lead to. So let's start with what is differentiation basically. If students look at finding average velocity, they end up writing displacement upon time, right? But if I want to find instantaneous value of velocity, I need to consider the time tending to be 0. Now this time interval tending to be 0 means I want to talk about one instant. One instant is something which can be 0.01 second, 0.001 second. So I cannot exactly define one instant. So what do we say? The time interval is approximately 0. So it tends to be 0. And now when we write like a limit where this time interval tends to be 0 with delta x by delta t, it basically defines v instantaneous, right? Which can be written as v instantaneous is equal to dx by dt. So probably this is the first use that students make about differentiation in their 11th standard. Similarly, they can talk about acceleration, like a instantaneous becomes equal to dv by dt. So one thing we can easily make out, differentiation is one mathematical tool in physics which is used for finding instantaneous value of physical quantities. Not only velocity, acceleration, but you can talk about force as well. बच्चों ने पढ़ा होता 9th standard में force is rate of change of momentum. So if I write F is equal to delta P by delta T, that will give me the average value of force. But if I write F is equal to dP by dt, that's going to provide me instantaneous value of force. So ऐसे ही they'll keep coming a number of formulas जिनमें आप delta put करेंगे तो it will give you the average value. If you use differentiation, it will provide you the instantaneous value. Fine. This is one thing. Second, differentiation can be used for finding slope of graph. How? Suppose I plot a graph between x and t and draw it like this. Then at one particular point, if I need slope, that has to be given by dx by dt. So you can remember that slope at a point for a graph may be given by differentiation. Another example, if you go for velocity versus time, say it is like this. At this particular moment, what is the acceleration? I need to find I have to draw a tangent and then find the slope. So the slope basically is dv by dt. So first thing, it gives us the instantaneous value. Second, in a graph, it provides us the slope of the graph. And last of all, we can talk about finding minimum and maximum value of a function. किसी मैथमेटिकल फंक्शन की मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए आप डिफरेंशिएशन यूज कर सकते हैं. जैसे इफ आई प्लॉट अ ग्राफ फॉर x and it goes, suppose it goes like this, comes down and then goes up. At this particular point, x has got its minimum value. At this point, it has got the maximum value. Now look at the slope. Slope at both these points a and b has become 0. So I can use dx by dt is equal to 0 if this is t. So once again, for an xt graph, I can use the concept of differentiation because it provides slope to deal with the minima and maxima. At both minima as well as maxima, the slope becomes 0. So I can write dx by dt is equal to 0. But solving dx by dt may provide me two values of time. Now I have to decide which one is for minima, which one is for maxima.
For that purpose, we go for second order differentiation, d square x by dt square, and put the value of time that we have got from first equation. If d square x by dt square comes out to be greater than 0, this provides me minimum value. Whereas if this second order differentiation is less than 0, it provides me maximum value. So I'll repeat. फर्स्ट थिंग, डिफ्रेंसिएशन जब हम शुरू करते हैं तो कहाँ से शुरू करते हैं? एवरेज वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी. इफ आई कंसिडर एन इंस्टेंट, आई विल गेट द इंस्टेंटेनियस वैल्यू. सो फॉर फाइंडिंग इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एटसेट्रा, नंबर ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर देयर, आई यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफ्रेंसिएशन. सेकेंड, फॉर फाइंडिंग द स्लोप, ग्राफ में एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर स्लोप फाइंड करना है तो विल गो फॉर डिफ्रेंसिएशन. थर्ड, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू सम अदर फिजिकल क्वांटिटी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी है, इवन देन वी टेक हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन, बिकॉज द स्लोप एट दीज पोजीशंस बिकम 0. वी पुट इट 0, वी मे गेट 2 or more values, then we have to go for second order differentiation. If the value comes out to be greater than 0, this represents a minima. If it is less than 0, this represents a maximum. So this is what we basically do with differentiation in physics. Now let us start with how to differentiate. As I told you, like I'll be taking on the topic up to the level जहाँ पे 11th 12th CBSE students, NEET students and JEE aspirants वो एक basic understanding बना सकें. So let's see. To start with, we say dt power n by dt. How do we read it? First of all, one should understand d by dt is an operator. We call it differentiation operator. This differentiation operator may be read as differentiation with respect to time, and for what? T power n. So overall, differentiation of t power n, that is time power n, with respect to time. The power comes to front and it reduces by 1. That simple is the basic differentiation. Let us take on simple application. T square. If I want to differentiate t square with respect to time, the power comes to front and it reduces by 1. So simply the differentiation of t square is 2t. Same way, if I go for dt power 5 dt, this will be read as differentiation of t power 5 with respect to t. And again, power comes to front and it reduces by 1. 5t4 is the differentiation of t power 5 with respect to time. If I have to differentiate a certain constant say pi, that will come out to be 0, because see, differentiation has basically come out of difference, delta से आया है. Pi is something which remains constant, इसमें change आने वाला ही नहीं है, so its differentiation would come out to be 0. And not only pi, but you consider any constant, its differentiation would be 0. So differentiation with respect to time or x or v of a constant say k will always be 0. ठीक है. Next step में I'll take on differentiation with respect to time, say for 5t square. 5t square. It includes a constant as well as t square. So what we do is, the constant goes out of differentiation and works as a multiplying factor 5, and the differentiation of t square is 2t. So it ultimately becomes 10t. So with practice you easily do this, like 2 5s are 10, 10t is the differentiation of 5t square. Similarly, if I go for differentiation of say 3t cube with respect to t, what would it be? 3 3s are 9, it would be 9t square. ठीक है. तो एक बिल्कुल सिंपल डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, फिर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करके अगर करते हैं, देन व्हाट डज डिफरेंशिएशन गिव अस. चलिए फाइन. इसी में इफ आई हैव टू डिफरेंशिएट 1 upon t square with respect to t, if it is 1 upon t square, I should first write it as d by dt of t power minus 2. T power minus 2. Now again go to the basic. It should become power comes to front and power reduces by 1. Minus 2 minus 1 is minus 3. So that's it, which may further be written as minus of 2 upon t power 3.
सो विद टाइम जब आप बहुत सारा डिफरेंशिएशन ऐसे डिनोमिनेटर का करते हैं तो you'll come to know whatever is the power that comes here and power is increased by 1 and obviously a negative sign comes along with. For example, if I have to differentiate d by dt 1 upon t power 4, what would it provide me? एक negative sign 4 and t power 5 in denominator. So in denominator power gets increased because t power minus होती है, you subtract 1, it increases in negative. So when it goes in denominator it appears to be increased. तो ऐसे आप सीख सकते हैं directly. Fine. अगर अब differentiation of x power 3 with respect to t किया जाए तो क्या मिलेगा? If it were differentiation of x power 3 with respect to x तो मुझे मिलता है 3x power 2. But variable is different. So in case you get a different variable, you should first make this variable same, like you do first differentiation with respect to x and then differentiation of x with respect to t. तो एक तरह से कहा जाए तो आपने क्या किया, dx से डिवाइड और dx से मल्टीप्लाई कर दिया सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए. एक चीज़ मैं पहले ही बोल रहा हूँ, दिस मे नॉट अपीयर टेक्निकल एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम बट शुड अपीयर प्रैक्टिकल फॉर यूटिलाइजेशन. So that is my purpose of doing this class. d of x cube with respect to t, तो आप सिंपली क्या करें, वेरिएबल सेम लेके आए, डिवाइड बाई dx मल्टीप्लाइड बाई dx, समझ में आता है, एंड dt here. Now this thing provides me 3x square and then accompanied by dx by dt. अब बहुत सारी जगह क्या होता है, dx by dt gets converted as velocity, तो वो चलता रहेगा. Now another one, if I go for d by dt of say 4t power 1 by 2, 4x sorry, x power 1 by 2, then what? It will give me, अब देखो यहाँ पे आपने एक बार वेरिएबल सेम करके सॉल्व कर लिया. अब एक चीज़ लर्न करनी है आपने, पावर कम्स टू फ्रंट, पावर रिड्यूसेस बाय 1 और इसका डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में. फिर देखें, पावर कम्स टू फ्रंट, सो 4 के साथ आई गेट 1 बाय 2 एंड पावर रिड्यूसेस बाय 1 सो इट बिकम्स माइनस 1 बाय 2, बट वेरिएबल डिफरेंट था सो आई शुड गो विद dx बाय dt. ये सिंपल क्लियर होना चाहिए आपको. पावर कम्स टू फ्रंट, पावर रिड्यूसेस बाय 1 बिकॉज द वेरिएबल वाज डिफरेंट सो आई नीड टू राइट dx बाय dt. दैट्स इट. सो अल्टीमेटली इट बिकम्स 2x पावर माइनस 1 बाय 2 dx बाय dt. फाइन. सो एक बार फिर देखें यहाँ क्या कर रहा हूँ. एक बिल्कुल बेसिक डिफरेंशिएशन से स्टार्ट किया, t पावर n विद रिस्पेक्ट टू t, उसके कुछ एग्जांपल्स लिए. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, फिर कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया t स्क्वायर को. यू नीड टू लर्न लाइक 5 टू द 10 t स्ट्रेट अवे आता है हमारे पास. जब ये डिनोमिनेटर में आता है तो यू हैव टू ब्रिंग इट टू न्यूमरेटर, दैट मेक्स t पावर माइनस 2. फिर ध्यान रखना है पावर नेगेटिव है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इट विल इंक्रीज न्यूमेरिकली. सो अल्टीमेटली आप ऐसे लर्न कर रहे हैं, लाइक इट वाज t स्क्वायर, इट बिकम्स t क्यूब, और जो यहाँ पावर थी दैट गोज विद नेगेटिव साइन which was implemented here 1 upon t power 4, so minus 4 upon t power 5. अब वेरिएबल को चेंज किया, x power 3 with respect to t, 3x square as if the differentiation was done with respect to x, but along with that dx by dt. एक और एग्जाम्पल लिया, 4x power 1 by 2, 4 as it is, power comes to front, power is reduced by 1 and then dx by dt. Fine. I hope you have been able to understand this. Now let us take on some function जिसमें t एक वेरिएबल है बट उसकी फंक्शन की पावर इंक्लूड की गई है. फॉर एग्जाम्पल, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम फॉर t स्क्वायर माइनस 1 पावर 1 बाय 2, t स्क्वायर माइनस 1 पावर 1 बाय 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम. एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए क्या करते हैं, इसे हम x मान लेते हैं. आई एम कंसिडरिंग कि t स्क्वायर माइनस 1 जो है वो x है. सो क्या लिखेंगे, विल बी राइटिंग d बाई डी टी ऑफ x पावर 1 बाई 2. ये तो अभी सीखा था हम लोगों ने. सो व्हाट डू वी डू, पावर कम्स टू फ्रंट, पावर रिड्यूसेस बाय 1 और dx बाय dt. इसको पुट बैक कर देते हैं एक बार. इफ आई पुट दिस थिंग बैक, हाफ ऑफ t स्क्वायर माइनस 1 पावर माइनस 1 बाई 2 and d by dt of, now again x is t square minus 1, half t square minus 1 power minus 1 by 2 and differentiation of t square with respect to t, it is 2t और 1 का 0. So this is what I obtained from here.
अब देखना ध्यान से फिर से, टी स्क्वायर माइनस 1 पावर 1/2, आप इसे एक वेरिएबल x लेट कर लेते हैं, इट बिकम्स x पावर 1/2. Power comes to front, power reduces by 1 because the variable was different. I go for dx by dt. Now I put the value of x back into this. Half of t square minus 1 power minus 1/2 and differentiation of t square minus 1. That leads to half of t square minus 1 power minus 1/2 into 2t. अब क्या चाहिए कि ये डायरेक्टली याद हो जाए. कैसे? Power comes to front and पावर रिड्यूसेस बाय 1 और इस अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन. बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट ऐसे याद करें, लाइक इट्स सॉर्ट ऑफ क्रैमिंग आफ्टर अंडरस्टैंडिंग थिंग्स. लाइक पावर कम्स टू फ्रंट, पावर रिड्यूसेस बाय 1 और इस अंदर वाले का डिफ्रेंसिएशन. दैट्स ऑल. इसी में एक एग्जांपल और लेते हैं. चलो, वन मोर एग्जांपल. डी बाय डी टी ऑफ से 1/t माइनस 1 पावर 1/3. सो जो हमने लर्न किया उसी को डायरेक्टली इंप्लीमेंट करेंगे. दिस बिकम्स इक्वल टू पावर कम्स टू फ्रंट, पावर रिड्यूसेस बाय 1 दैट इज माइनस 2/3. वन नीड्स टू अंडरस्टैंड, ये वाली चीज एज इट इज रिपीट करती है. पावर कम्स टू फ्रंट एंड पावर इज रिड्यूस्ड बाय 1. अब अंदर वाले पार्ट का डिफ्रेंसिएशन. सो 1/t का डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा? माइनस 1/t स्क्वायर. दैट्स इट, डन. यहाँ पे अभी हमें कंप्लीट सॉल्विंग की जरूरत नहीं है. वी आर बेसिकली ट्राइंग टू अंडरस्टैंड हाउ टू डिफरेंशिएट. वो क्वेश्चंस में करेंगे कैसे कंप्लीट कैलकुलेट करना है. डन. अब इसमें एक काम करता हूँ, वेरिएबल चेंज कर लेता हूँ. जैसे d बाय डी टी ऑफ से एक्स स्क्वायर माइनस 1/x पावर 2/3. अब फंक्शन की पावर भी आ गई और आपने वेरिएबल भी डिफरेंट चूज कर लिया. सो व्हाट डू वी डू? पावर कम्स टू फ्रंट, power reduces by 1 that is 1/3 with negative sign. Power comes to front and power reduces by 1 और इस अंदर वाले का differentiation that will be x square का differentiation is 2x and plus 1/x square. I hope 1/x का differentiation minus 1/x square होता है, ये सबको क्लियर है. and we get minus minus plus it is 1/x square. so अगर तो वेरिएबल यहाँ पे x होता जिसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना था तो कंप्लीट हो गया था, बट इट इज t. so what do I need to do is dx by dt. so एक बार फिर ध्यान से देखें, अगर मैंने ये वाला वेरिएबल इसे डिफरेंट रखा, पावर कम्स टू फ्रंट, पावर रिड्यूसेस बाय 1, अंदर वाले का डिफरेंशिएशन वेरिएबल डिफरेंट था तो साथ में dx by dt. दैट्स इट. ये एक बिल्कुल बेसिक सा डिफरेंशिएशन है जितना सबको अच्छे से आना ही चाहिए. ठीक है, अब करते हैं मल्टीप्लिकेशन हो तो कैसे सॉल्व करेंगे. मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के लिए सपोज यू गेट टू फंक्शंस d बाय डी टी ऑफ, एकदम सिंपल रखता हूँ, t स्क्वायर 1/t माइनस 1 पावर 1/3. I've got multiplication of two functions of time. One is t square, one is 1/t minus 1 power 1/3. इसको डिफरेंशिएट करना है t के रिस्पेक्ट में. सो क्या करते हैं, एक फंक्शन एज इट इज मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, d बाय डी टी ऑफ u इंटू v लिख देते हैं, जहाँ पे u इज वन फंक्शन, v इज द सेकेंड फंक्शन. सो हाउ डू वी प्रोसीड? कीप वन ऑफ द फंक्शन एज इट इज, डिफरेंशिएट द सेकेंड वन, प्लस कीप द सेकेंड वन एज इट इज एंड डिफरेंशिएट द फर्स्ट वन. अब इसको यूज करते हैं. यहाँ पे देखिए, जब सॉल्व करेंगे तो t स्क्वायर इज द फर्स्ट फंक्शन, सो लेट अस कीप इट एज इट इज, t स्क्वायर रिमेन्स एज इट इज. सेकेंड फंक्शन, पावर कम्स टू फ्रंट एंड पावर रिड्यूसेस बाय 1 और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस 1/t स्क्वायर. प्लीज पे अटेंशन. फर्स्ट केप्ट एज इट इज, सेकेंड को डिफरेंशिएट करना है, पावर कम्स टू फ्रंट, पावर रिड्यूसेस बाय 1 और अंदर वाले का डिफरेंशिएशन. सिंपल. अब सेकेंड पार्ट, प्लस नाउ कीप दिस एज इट इज, 1/t minus 1 power 1/3 and differentiate t square which is very simple, it's 2t. done. एक बार फिर देख लें, अगर दो फंक्शंस है, keep one function as it is, differentiate the second one, plus keep the second one as it is and differentiate the first one. right? अब इसी में अगर डिफरेंशिएशन करने वाला वेरिएबल डिफरेंट हो,
फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे बना लेता हूं डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर एंड 1 बाई एक्स माइनस 1 पावर 1/3 होता तो क्या डिफरेंस होता? यू आर डिफरेंशिएटिंग फंक्शंस ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो फर्स्ट एक्स स्क्वायर रिमेन्स एज इट इज 1/3 1 बाई एक्स माइनस 1 पावर माइनस 2/3. फर्स्ट फंक्शन एज इट इज. सेकेंड का डिफरेंशिएशन, पावर कम्स टू फ्रंट, पावर इज रिड्यूस्ड बाई 1. अंदर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर. तो अगर एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता तो कंप्लीट हो जाता फर्स्ट पार्ट यहाँ पे, बट एक्स एंड टी, सो आई नीड टू राइट डी एक्स बाई डी टी. राइट, ये इस कंप्लीट के साथ आ गया. प्लस अब सेकेंड फंक्शन एज इट इज 1 बाई एक्स माइनस 1 पावर 1/3 और फर्स्ट पार्ट का डिफरेंशिएशन दैट इज 2x, बट साथ में क्या आएगा डी एक्स बाई डी टी. दिस इज इट. तो इसमें मल्टीप्लीकेशन कवर हो गया. अगर मैं डिफरेंशिएशन के लिए जाता हूं तो देयर आर 2 ways. सम ऑफ द किड्स दे ब्रिंग द डिनोमिनेटर टू न्यूमरेटर, पावर नेगेटिव हो जाती है, फिर से मल्टीप्लीकेशन में कन्वर्ट हो जाता है. सो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकेंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, इट्स सेम थिंग. बट अगर आप फॉर्मूले से जाना चाहते हैं, डी बाई डी टी ऑफ सपोज यू बाई वी मिल जाता है आपको. सो व्हाट डू वी डू, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दीजिए, इट कम्स टू न्यूमरेटर एंड प्लेस द रोल ऑफ अ गेस्ट. तो गेस्ट को एज इट इज बिठाया भाई, वी स्क्वायर वी एज इट इज, साथ में डी यू बाय डी टी माइनस इस बार u एज इट इज एंड डी वी बाय डी टी. तो बेसिक फॉर्मूला क्या है, वी स्क्वायर v एज इट इज एज अ गेस्ट इन न्यूमरेटर, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन. दिस इज द बेसिक फॉर्मूला दैट यू नीड टू नो. अब इसके बेसिस पे एक छोटा सा डिफरेंशिएशन कर लेते हैं. d बाय डी टी ऑफ से एक्स क्यूब 1 माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर पावर 1/2. Keep it in denominator. This one is in denominator. So x cube divided by 1 minus 1 by x square power 1/2. So let's follow it. Denominator का square करना है हमें. So इसका square करूँगा तो I'll get 1 minus 1 by x square. Now this comes to numerator and stays as it is 1 minus 1 by x square power 1/2. And then differentiation of the first one, that is 3x square. फिर ध्यान दीजिए, if the differentiation were with respect to x तो ये complete हो जाता, but the differentiation is with respect to t, so I need to write dx by dt. ये crucial रहता है questions के अंदर. Now minus sign, this function now remains as it is and you have to differentiate this second function. Power comes to front, power reduces by 1 that is minus 1/2 and इस पार्ट का डिफरेंशिएशन 1 का 0 माइनस 1 बाई एक्स से 1 बाई एक्स स्क्वायर मिल जाएगा. अगेन इट इज विद रिस्पेक्ट टू टी, सो वी नीड टू राइट डी एक्स बाई डी टी. सो एक बार फिर देखें, दिस फंक्शन इन डिनोमिनेटर, इसका स्क्वायर किया आपने, कम्स टू न्यूमरेटर स्टेज एज इट इज, फर्स्ट वाले का डिफरेंशिएशन माइनस फर्स्ट एज इट इज, न्यूमरेटर वाला फंक्शन एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन एट डिनोमिनेटर. पावर कम्स टू फ्रंट, पावर रिड्यूसेस बाय 1, अंदर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन बिकॉज द वेरिएबल वाज डिफरेंट, सो साथ में लिखा dx बाय dt. तो इस तरह से आप बिल्कुल सिंपल वाला डिफरेंशिएशन सारा इस, मतलब अगर लगता है कि भूल रहे हैं तो यार क्या है, खाली बैठे हैं, वीडियो निकाल लो, वीडियो निकाल के देख लो, सो सारी चीज़ें रिकॉल हो जाएंगी. राइट, मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे के बेसिस पे एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेता हूँ. उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको क्लियर होता है कि क्या क्या एक्सपेक्टेशंस रहती हैं आपसे. देखते हैं. सी इट वाज गिवन एज t इज इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस बीटा एक्स प्लस गामा. ये एक फंक्शन आ गया टाइम और x की फॉर्म में, अल्फा बीटा गामा आर कांस्टेंट एंड यू आर सपोज टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन इन टर्म्स ऑफ वेलोसिटी. सो पहली बात तो बच्चे को ये समझना है कि डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में करें. वन ऑफ द ऑप्शन इज, क्योंकि देखो x t की फॉर्म में गिवन होता है तो रहता है कि dx by dt विल बिकम वेलोसिटी.
एक ऑप्शन तो रहता है कि आप इसे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, वो 1/v बन जाएगा, उसे इन्वर्ट कर लेंगे. लेट मी डू विद दैट. इफ आई डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, आई गेट dt बाय dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ अल्फा x, राइट, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूं तो इट विल गो एज ट्वाइस ऑफ अल्फा x प्लस बीटा. गामा इज अ कांस्टेंट, इट्स डिफरेंशिएशन बिकम्स 0. Right, so dt by dx, because dx by dt is velocity, so dt by dx should be taken as 1 by velocity. So 1 by velocity becomes equal to twice of alpha x plus beta. So v basically becomes twice of alpha x plus beta power minus 1. एक तरीका ये था वेलोसिटी तक पहुंचने का, राइट. एक और तरीका क्या अपना सकते हैं, आप इस पूरे को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर दो, फर्स्ट वाले को ही. तो अगर मैं इसे t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूँ, एट लेफ्ट हैंड साइड आई गेट 1, दैट्स इक्वल टू दिस इज ट्वाइस ऑफ अल्फा x इनटू dx बाय dt, बिकॉज द डिफरेंशिएशन इज डन विद रिस्पेक्ट टू t, प्लस बीटा इनटू dx बाय dt. गामा अगेन इज अ कांस्टेंट, सो इट्स डिफरेंशिएशन इज 0. ये मिल गया. इसमें क्या कर सकते हैं, dx by dt is velocity, we can take it common. 1 is equal to twice of alpha x plus beta into dx by dt, which is velocity, which again leads to velocity becoming equal to 2 alpha x plus beta power minus 1. So both of ways lead to same result. Now I have to find acceleration. So acceleration is what? It is dv by dt. So now I need to differentiate with respect to time this particular function, twice of alpha x plus beta power minus 1. तो देखिए, power comes to front, power reduces by 1, और अंदर वाले पार्ट का डिफरेंशिएशन इट इज 2 अल्फा. देखो, अगर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता तो बस यहाँ तक कंप्लीट हो जाता, बट इट इज विद रिस्पेक्ट टू t, सो वी नीड टू राइट dx by dt. दिस इज एक्सेलरेशन. Now look at it once again. A becomes equal to minus of, bring this 2 alpha at the front and look at this carefully. Velocity 2 alpha x plus beta power minus 1 है, squaring both sides. I'll get 2 alpha x plus beta power minus 2 as v square. So this thing is v square. And dx by dt is also velocity. So the answer was A is equal to minus 12 twice of alpha v cube. Right? So they not only check your concepts, but how quickly you are able to mold things, understand things, कि आप यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे 1/v करोगे, और या फिर कंप्लीट को t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके कॉमन निकाल के इस तरह से चेंज ओवर करके सॉल्व कर सकते हो. फाइन, दैट वाज इट. अब मैं लास्ट ऑफ ऑल साइनोसॉइडल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और लॉगरिथमिक फंक्शन क्विकली थोड़ा सा इसका डिफरेंशिएशन डिस्कस कर लेते हैं. डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टी बिकम्स इक्वल टू कॉस ऑफ ओमेगा टी, और ये जो पार्ट है इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करता है ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी, जो आप वैसे समझ सकते हैं. देखिए ध्यान से, साइन ऑफ ओमेगा टी, अगर आप डिफरेंशिएशन साइन ऑफ ओमेगा टी का ओमेगा टी के रिस्पेक्ट में करते तो आपको क्या मिलता? वुड हैव गॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी. बट यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू टी था, तो इस जगह पे मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? आई विल ऑल्सो हैव टू राइट डी ऑफ ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टी, सो दैट लीड्स टू ओमेगा. इसलिए आप ऐसे करके सिंपली याद रख सकते हैं, डिफरेंशिएशन में t का कोफिशिएंट बेसिकली मल्टीप्लाई करता है. बट येस, अगर t स्क्वायर होता तो इन दैट केस यू हैव टू थिंक ऑफ दैट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म इज गोइंग टू मल्टीप्लाई. मैं रिपीट करता हूँ, अगर t की फर्स्ट पावर है तो आप सिंपली ऐसा कह के काम चला सकते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ t इज गोइंग टू मल्टीप्लाई. बट अगर ये t स्क्वायर की टर्म होती तो क्या? तो आप उस टर्म का एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बोलते और उससे मल्टीप्लाई करते. दिस इज टू बी अंडरस्टूड. फाइन. सो वन लास्ट टाइम, इफ आई डिफरेंशिएट साइन ऑफ ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टी, इट बिकम्स ओमेगा कॉस ऑफ ओमेगा टी. And if I have to differentiate cos of omega t with respect to t, it becomes minus of omega sin of omega t. तो ध्यान रखें, साइन का डिफरेंशिएशन प्लस कॉस और कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, और t का कोफिशिएंट आगे मल्टीप्लाई करने वाला है.
ठीक है, अभी साइन कॉस ही करें सिर्फ। अब इसी तरह से लेट अस टॉक अबाउट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शन डी बाई डी टी ई रेज टू द पावर अल्फा टी इज इक्वल टू, ये फंक्शन अपने आप को एज इट इज रिपीट करता है, और फिर से वही कहूँगा जो ये t वाला पूरा फंक्शन है इसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करता है, बिकॉज इट इज अल्फा टी सो द डिफरेंशिएशन इज अल्फा। सो हम सिंपली बोल देते हैं t का कोफिशिएंट यहाँ पे मल्टीप्लाई करने वाला है। सो इफ इट वर d बाई डी टी ऑफ e रेज टू पावर माइनस 3x सपोज होता, देन वॉट इट वुड हैव बीन e रेज टू द पावर माइनस 3x, बट इसका डिफरेंशिएशन कितना होता, माइनस 3 इंटू डी एक्स बाई डी टी। यू हैव टू राइट डी एक्स बाई डी टी इन दैट केस, क्लियर, क्योंकि वेरिएबल डिफरेंट हो गया। अदरवाइज माइनस 3t होता तो सिर्फ माइनस 3 आके मल्टीप्लाई करता। दिस इज फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट लॉगरिथमिक फंक्शन d बाय डी टी ऑफ लॉग विद बेस e। सपोज आप ax प्लस b करते हैं, दैट बिकम्स इक्वल टू 1 अपॉन ax प्लस b। जो भी चीज़ लॉग नेचुरल लॉग के साथ लिखी हुई है दैट गोज टू डिनोमिनेटर, 1 अपॉन ax प्लस b, और इस पार्ट का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करेगा, इसका डिफरेंशिएशन सिर्फ a बन जाता है। सो आई गेट a अपॉन ax प्लस b, दैट्स इट। बिल्कुल सिंप्लीफाई करूँ अगर d बाई डी टी ऑफ लॉग विद बेस e, सपोज आप 3x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, सो व्हाट डज इट गिव मी, 1 अपॉन 3x, बट 3 का फैक्टर फिर मल्टीप्लाई कर जाएगा, सो इट सिंपली कम्स आउट टू बी 1 बाई x। ये सारी वैल्यूज़ एक्चुअली इनिशियल कंडीशंस को यूज़ करके फिर अल्टीमेटली पता चलती हैं। तो यहाँ पे तो सिंपली ये समझ लीजिए, अगर मैं लॉग का डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ तो जो लॉग के साथ है दैट कम्स इन डिनोमिनेटर, और उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करता है। तो ये कुछ बिल्कुल बेसिक से डिफरेंशिएशन हैं जो आपको आने चाहिए। नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें कुछ क्वेश्चंस लेके आऊँगा जो इन सारे फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।